Hey everyone, good evening. This is Manjeet Rawat, your online instructor, and this is day one of SC 300 examination series. Last class में हमने आपको गाइड किया था कि which types of topics that we will cover in this particular module, not module in this particular certification. और आज day one है, we'll follow the same content which is provided by Microsoft Azure. और डेफिनेटली ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी बिकॉज in the entire series you will learn about how we can manage and configure the Azure Active Directory services. So let's move ourselves to the portal and discuss about the content that we need to cover today. So before that, if you are new on my YouTube channel, if you are watching my video first time, so please do subscribe because Teach Me Cloud is a single technical training based YouTube channel that give you 100% live practical based video without skipping any step. So let me show you the content that we need to cover today, right? So this is our examination means certification SC300 Microsoft Identity and Access Administrator. As per the name suggests, it's a core related to the Active Directory management, right? It's a core related to the Active Directory management. यहाँ पे अगर हम बात करें, this is day one. So day one में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? As we know that it is categorized in 4 different modules, जिसमें पहला मॉड्यूल है आइडेंटिटी, implement identity and as in Azure, implement authentication and access management, implement access management for applications and plan and implement identity governance in Azure. ये 4 डिफरेंट मॉड्यूल हैं. हर एक मॉड्यूल में मल्टीपल सर्विसेज, मल्टीपल कंटेंट हमें कवर करने की रिक्वायरमेंट है. हम पहले से ही स्टार्ट करते हैं. दिस इज इम्प्लीमेंट एंड आइडेंटिटी मैनेजमेंट सोल्यूशन. इसको हम ओपन करते हैं एंड लेट्स सी विच टाइप्स ऑफ टॉपिक दैट वी नीड टू कवर इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, राइट. सो इनिशियल एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगरेशन में जो पहला पॉइंट है, पहले तो हम बेसिक डिस्कशन करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, किस तरीके से एक्टिव डायरेक्टरी हमारी हेल्प करता है टू मैनेज द अदर सर्विसेज और अदर पोर्टल, एंड देन विल डिस्कस अबाउट द कॉन्फ़िगर कंपनी ब्रांड विच इज़ वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक. बिकॉज जब भी आप अपने मेल आईडी को लॉगिन करते हैं, अपने ऑफिशियल मेल आईडी को लॉगिन करते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड में या जो पैनल होता है, जो विज़ार्ड ओपन होता है, जहाँ पे आप यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मेंशन करते हैं, वहाँ पे कंपनी का लोगो दिखाई पड़ता है. सो विच इज़ कंसिडर्ड एज ए कंपनी ब्रांड, राइट. सो इस क्लास में हम आपकी हेल्प करने वाले हैं हाउ वी कैन अचीव दिस पर्टिकुलर टास्क, कि अगर आप एज ए एज्योर इंजीनियर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या ऑफिस 365 इंजीनियर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर द कंपनी ब्रांड. सो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन अवर एज्योर पोर्टल एंड यू नो दैट आई हैव माई ऑन MSDN अकाउंट. सो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यू शुड कंटेन एटलीस्ट 1 सब्सक्रिप्शन. फ्री ट्रायल भी हो सकता है, पे एज यू गो भी हो सकता है, एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ द MSDN अकाउंट. ओपन इट and we are able to find the option of identity. Just need to click here. It will redirect you on the page of Active Directory services. So we just need to click on Azure Active Directory. It will redirect you on another page. अब आप देखिए यहाँ पे multiple options दिखाई पड़ रहे हैं. We are able to find the tenant. We are able to find the user group, external identities, roles and administration. Multiple options are available. तो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है, configure and manage Azure Active Directory roles as well. बट उसके पहले यू शुड नो अबाउट व्हाट इज़ यूज़ ऑफ, व्हाट इज़ वर्क ऑफ एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी. सो लेट मी ट्राई टू हेल्प यू कि किस तरीके से एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी काम करता है. इन सिंपल वर्ड यू कैन से दैट द एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी इज बेसिकली टाइप्स ऑफ पैस सर्विस. ये एक तरीके का पैस सर्विस में कंसीडर किया जाता है. एज्योर AD is type of PaaS service, means platform as a services. In this case, no need to implement any hardware, no need to configure or create any virtual machine to install Active Directory. This is the built-in service. जब आप साइन अप करते हैं Azure पोर्टल के ऊपर, जब आप कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके सब्सक्रिप्शन के साथ एक Active Directory का डैशबोर्ड अटैच हो जाता है. Yes, you are able to find the Active Directory services only on the behalf of subscription. अगर अपने पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो definitely we are unable to use the Azure Active Directory services. Azure AD is the type of PaaS service, and let's try to understand about how we can use this particular service with another portal. जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ डिफरेंट डैशबोर्ड हैं या बोल सकते हैं डिफरेंट पोर्टल हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ Azure Active Directory हम इन सभी डैशबोर्ड्स को अच्छे से मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं. For example, this is Azure AD, and in the Azure AD we created some users. हमने
एज्यूर रेडी की मदद से कुछ यूज़र क्रिएट कर रखे हैं, एनी यूज़र लाइक एज वी क्रिएटेड अ यूज़र विद नेम ऑफ टेस्ट. यूजिंग द टेस्ट यूज़र वी कैन लॉग इन ऑफिस 365 पोर्टल, जो आप माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल की बात करते हैं. सेकेंड, बाय यूजिंग द सेम टेस्ट यूज़र यू कैन मैनेज माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सर्विस. जब भी आप कोई ऑन प्रोमाइसेस डिवाइस को इनरोल करना चाहते हैं तो दैट टाइम यू ऑलवेज प्रोसीड विद द एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र. तो आप टेस्ट यूज़र से अपने किसी भी ऑन प्रोमाइसेस डिवाइस को इनरोल करा सकते हैं. एंड नंबर थर्ड, अगर आप AVD का सेटअप करना चाहते हैं, एज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप का सेटअप करना चाहते हैं, तो उस केस में भी एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी विल हेल्प यू. आई वांटेड टू ऐड वन मोर पॉइंट विच इज़ रिलेटेड टू द एज्यूर पोर्टल. अगर हम यहाँ पे बात करें, दिस इज़ एज्यूर पोर्टल, और इस एज्यूर पोर्टल में आपने बहुत सारी सर्विसेज क्रिएट कर रखी है, राइट. आपने यहाँ पे VM क्रिएट कर रखा है, आपने यहाँ पे स्टोरेज मैनेज कर रखा है, आपने डेटाबेस मैनेज कर रखा है, राइट, SQL मैनेज कर रखा है, या वर्चुअल मशीन को कॉन्फ़िगर कर रखा है. बाय यूजिंग द एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी एंड RBAC सर्विस आप अपने इन रिसोर्सेज को आइडेंटिटी प्रोवाइड कर सकते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए. ठीक है. माइक्रोसॉफ्ट 365 एज्यूर एडी के यूज़र को मेल बॉक्स प्रोवाइड कर सकता है. माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून की बात करें तो इसका इस्तेमाल करते हैं इनरोलमेंट के लिए, कि आप अपने इस यूज़र के ज़रिए ऑन प्रोमाइसेस डिवाइस को इनरोल कर पाएंगे. और यहीं पे अगर हम बात करें AVD, तो AVD के केस में आप होस्ट पूल के अंदर जो वर्चुअल मशीन बनाएंगे उस होस्ट पूल की वर्चुअल मशीन्स को कंट्रोल या लॉगिन करा सकते हैं. यहाँ पे RBAC आएगा, यहाँ पे RBAC सर्विस आएगी, यहाँ पे आपका AVD होस्ट पूल क्रिएशन आएगा, ये इनरोलमेंट के लिए, ये मेल बॉक्स के लिए. तो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ आवर एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी, राइट. आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी. अब दूसरा एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम बात करें थोड़ा सा और, इसको आगे प्रोसीड करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ इट्स वर्क, ये किस तरीके से काम करता है. पहला जो ऑप्शन हमें दिखाई पड़ा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द SC300, वो है कंपनी ब्रांड. ठीक है. कंपनी ब्रांड का अगर हम एग्जांपल देखें तो जब आप कोई ऑफिशियल वेबसाइट, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और जब आप ऑफिस 365 का आप पोर्टल ओपन करते हैं ना, सो उस ऑफिस 365 पोर्टल के केस में आपको क्या मिलता है, लाइक आई एम गोइंग टू शो यू, इट विल शो यू द कंपनी ब्रांड. ठीक है ना. आप जब भी इसको लॉगिन करेंगे ना, आपको ये कंपनी का लोगो का ऑप्शन, कंपनी का लोगो आपको पेज पे दिखाई पड़ेगा लाइक दिस. वी हैव ऑप्शन टू सेट अप द बैकग्राउंड एज वेल. यहाँ पे आप बैकग्राउंड में भी सेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे RTBA डिज़ाइन दिखाई पड़ रहा है. दिस इज़ द लोगो, और ये आपका कंपनी ब्रांड के अंदर का आता है. ठीक है. चलिए प्रैक्टिकल दिखाते हैं किस तरीके से इसको अचीव करेंगे. इसके लिए हम अपने पोर्टल पे आ जाएंगे, एक्टिव डायरेक्टरी के पोर्टल पे आ गए, और एक्टिव डायरेक्टरी के पोर्टल पे आने के बाद यू जस्ट नीड टू ड्रैग ड्रॉप डाउन में देखिए पासवर्ड रीसेट की जस्ट बाद आपको कंपनी ब्रांड दिखाई पड़ रहा है. Just need to click on the company brand and it will give us a multiple option. Getting started, default sign in and browser, language customization. ठीक है. ये ऑप्शन आपका डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि यू नो दैट क्लाउड, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर है ना, वो सभी कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं अपने पोर्टल के साथ, मीन्स अपनी सर्विसेज के साथ. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन गेटिंग स्टार्टेड, और यहाँ पे हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं. वी हैव बोथ ऑप्शन, लैंग्वेज भी आप सेट कर सकते हैं ब्राउजर का. अभी आप क्लिक करेंगे एडिट पे, और इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज जहाँ पे आप अपने ब्रांड को मेंशन करेंगे. अपलोड बैकग्राउंड इमेज, फेविकॉन, और चूज़ बैकग्राउंड कलर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं. आप चाहें तो कलर या कंपनी का जो लोगो है उससे रिलेटेड कलर मेंशन कर सकते हैं, या पूरा का पूरा लोगो आप असाइन कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू ब्राउज, और यहाँ पे हमने एक अपना लोगो, टीच मी क्लाउड का लोगो क्रिएट कर रखा है, जिसकी साइज़ 32x32 है, होनी चाहिए, पिक्सल होने चाहिए. अगर आपके पास कोई इमेज है तो आप डायरेक्टली रीसाइज कर सकते हैं. रीसाइज पिक्सल एक साइट होती है, जस्ट नीड टू टाइप रीसाइज पिक्सल, और यहाँ पे ओपन करने के बाद जो भी इमेज आप अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना चाहते हैं, लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर इमेज. अभी इसकी जो विथ है वो 1280 है, और हाइट जो है 720. I'm just going to make it 32 and 32 as per the requirement. आप रिसाइज करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है ये, और इसको आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, राइट. सो आप अपने इमेज को, जो भी अपने पास इमेज है उसको आप रिसाइज कर सकते हैं. ये हमने लोगो दिया, एंड दिस इज द बैकग्राउंड. डू यू वांट टू ऐड द बैकग्राउंड? बैकग्राउंड में क्या होगा कि
आप जो लोगो है ना, ये पूरे के पूरे विज़ार्ड, बैकग्राउंड के विज़ार्ड पे भी दिखाई पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अब अपने पास ब्लैंक दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे ब्लैंक दिखाई पड़ रहा है। अगर आप अपना लोगो ऐड करेंगे तो यू विल गेट द लोगो इन्फॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड एज वेल। सो इट्स अप टू यू, आई एम नॉट गोइंग टू ऐड, ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी ऐड नहीं करना चाहते हैं, बट यू हैव ऑप्शन टू डू दैट। एंड दिस इज़ द कलर। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर को डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन सा कलर बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं। लोगों के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस, आप इसको रिव्यू करिए और सेव कर दीजिए, ठीक है। कंपनी बैकग्राउंड हमने सक्सेसफुली यहाँ पे ब्रांडिंग कर दी, और ब्रांडिंग करने के बाद इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करने के लिए जितने भी यूज़र्स हैं उसमें से किसी एक यूज़र को आप ट्राई कर दो लॉगिन करने के लिए। सो लेट मी ओपन इनकॉग्निटो विज़ार्ड और देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पास। यूज़र नेम है मेंशन करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, वी आर एबल टू फाइंड द लोगो, दिस इज़ आवर लोगो। और बैकग्राउंड में हमने अभी थोड़ी देर पहले कलर का सिलेक्शन किया था, राइट। ये एडमिन पैनल पे अब अगर आते हैं यहाँ पे, एंड अगेन वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द कंपनी ब्रांड, तो इसमें हमने एक कलर डिसाइड किया था। दिस इज़ द कलर, पेज कलर। अगर आप एडिट करते हैं और एडिट करने के बाद अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करते हैं ना, तो ये जैसा भी कलर आपको चाहिए, ये बैकग्राउंड दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, मतलब एक प्रीव्यू है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस तरीके का बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, राइट। सो इट्स अप टू यू, आप कंपनी लोगो के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ठीक है। सेव करो और इसको बैक टू द यूज़र जो आप लॉगिन करना चाहते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, portal.azure.com। बैकग्राउंड आपका चेंज हो चुका है, राइट, एंड यू जस्ट नीड टू लॉग इन इट। सो दिस इज द कंपनी ब्रांडिंग बेसिकली। मीन्स SC300 के केस में जो पहला टॉपिक है अपने पास वो है कंपनी ब्रांड। तो बेस से स्टार्ट किए हैं ताकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं SC300 का एग्जाम को क्लियर करने के लिए या इंटरव्यू पर्पज़ के लिए, तो आपको प्रैक्टिकली साउंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों के केस में, इंटरव्यू क्रैक करने के भी हैप है, और अगर आप व्हाट वी कैन से दैट, अगर आप मीन्स किसी भी क्लाइंट का इन्वायरमेंट हैंडल कर रहे हैं, एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी का इन्वायरमेंट हैंडल कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये मैंडेटरी है। सो उम्मीद है यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट, आप ड्रॉप करिए कमेंट, डेफिनेटली विल हेल्प यू। और साथ ही साथ अगर हम बात करें रोल्स की, अब देखिए यहाँ पे रोल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट आता है। इसका प्रैक्टिकल हम अगली क्लास में देंगे, बट अभी हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि ये जो रोल्स है ना, विच इज़ कैटेगराइज्ड इन 2 डिफरेंट पार्ट। एक तो आपको बिल्ट इन रोल मिल जाता है, और एक आप कस्टमाइज्ड रोल आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करके क्रिएट कर सकते हैं। रोल को मैनेज करने के लिए P2 या P1 लाइसेंस का होना ज़रूरी है। सो आई विल शो यू द प्रैक्टिकल इन नेक्स्ट सेशन, बट लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट कि ये जो रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन है ये क्या है। यू कैन से दैट इट्स अ टाइप ऑफ डेलीगेशन। अगर आप किसी यूज़र को डेलीगेट करना चाहते हैं, उसकी राइट्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, उसकी एक्टिविटी को इन्हेंस करना चाहते हैं, तो दैट टाइम वी कैन ऐड द रोल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर फीचर। इज़ दैट क्लियर? सो दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही। दिस इज़ डे 1, ये आपका पहला क्लास था रिलेटेड टू द एग्ज़ाम SC300, और डेफिनेटली विल ट्राई टू कंप्लीट द इंटायर कंटेंट बाय विद इन 15 days, ताकि आप भी अपनी प्रिपरेशन कर सकें अकॉर्डिंग टू द क्लास। सो डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर ऑफिस कलीग एंड योर फ्रेंड्स, एंड लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय बाय गाइज।